Good morning, dear children, and welcome to the last part of EVS chapter 11, The Valley of Flowers. We have completed a major portion of chapter. Now we are going to do the only last part of it. So we had done parts of a flower. Uh, we studied that flower can be divided into four major parts: the colored part petal, the green supporting part sepal, then within the petals it has stamen and pistil. So these are the four main parts of a flower: petal, sepal, stamen and pistil. Now when we talk about flowers, we should also talk about buds, because it is the buds which give rise to the flower. Bud means कली, जिसमें से flower आता है. You can see in the picture of bud is shown and the picture of flower is also shown. You must have seen buds on the plants. If there are any flower bearing plants growing near your home or school, look carefully at their buds. उनकी buds को ध्यान से देखना है. What difference do you find between a flower and a bud? What is the difference between a flower and a bud? In flower, the petals are open and sepals are only supporting from bottom, whereas in buds, sepals enclose the petals within them. Buds में petals sepal के अंदर छुपे हुए होते हैं. They are hidden. Petal open नहीं होते हैं. Okay. Draw the picture of a bud and its flower. So you must be able to observe flowers in your surroundings and draw their pictures. Okay, how they change when they once the flower bloom, how it changes from a bud to a flower. Choose a bud that is growing on a plant and look at it every day. Right, then you have to observe a bud growing. There must be so many plants near your house. Take any one that you like the most, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो या सबसे interesting लगता हो. You take that. Observe the growth of the bud. Note down the name of the plant. When you first saw this bud, उसकी bud आपने सबसे पहले कब देखी? Note down the date. Now when the bud has bloomed into a flower, जब bud flower बन गई, what was the date? So आप नोट करोगे कि एक बड स्टेज में कितने दिन तक रहती है और कितने दिन बाद वो फ्लावर बन जाती है. Even after that, how many days did the bud take to become a flower? बड फ्लावर कितने दिन में बन गई, ये भी आपको नोट करके यहाँ पर लिखना है. तो यू विल राइट नेम ऑफ द फ्लावर हेयर, डेट हेयर, देन द डेट ऑफ ब्लूमिंग, किस दिन ब्लूम हुई, एंड हाउ मेनी डेज डिड इट टेक, कितनी डेज लगे उसको फ्लावर बनने में. Ask your friends the names of different flowers that they have seen, and then you can inquire from your friends also कि तुमने कौन से फ्लावर का देखा, तो you can get a good detail of it. Okay. Now these flowers that we are talking about, they are not just used for their beauty. सिर्फ इसलिए नहीं उनको हम अच्छा मानते हैं क्योंकि वो बहुत beautiful होते हैं. They are of many good uses to them. You must have seen और heard of some of the granny's old recipe. जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं, जो दादी माँ कुछ बताती हैं, किसी चीज़ों के इलाज बताती हैं, they are generally from the plants. Plant sources से ही मिलते हैं वो, और उनमें बहुत सारे flowers भी होते हैं. And here is one recipe for which rose water is used. रोज़ वाटर, गुलाब जल जिसको कहते हैं, वो हमारे बहुत काम आता है. आप सबके घर में गुलाब जल ज़रूर होगा, शायद ही कोई होगा जिसके घर में नहीं होगा. नाउ व्हाट इज़ द ग्रैनीज रेसिपी? क्यों होता है, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि सब हम पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं अपनी दादी नानी से कि गुलाब जल आँख के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है. तो हाउ इज़ इट यूज्ड? मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन. Glycerine and rose water add in equal amount and fill in a bottle. Add a few drops of lemon juice. उसमें 2 बूंद लेमन जूस भी डाल दो थोड़ा सा. In winters use this mixture on your skin. और इस मिक्सचर को अपने स्किन पर लगाना चाहिए.
योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई। विंटर्स में हमारी स्किन क्रैक हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फटती है, तो उससे बचने के लिए हम इतनी क्रीम लगाते हैं। बट दिस इज़ द नेचुरल रेमेडी फॉर इट, जो कि हमें बहुत इजीली अवेलेबल होता है। गुलाब जल में ग्लिसरीन मिलाएंगे और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएंगे, विल मिक्स इट, एंड व्हेन वी विल यूज़ इट इन विंटर्स आवर स्किन विल नॉट क्रैक। सो दिस इज़ अ good recipe of granny and a good use of gulab jal also. Now, have you experienced the smell on opening a small bottle of itr? Before we know this, you should know what is itr. इत्र क्या होता है? हमने परफ्यूम तो सुना है, ऐसी छोटी छोटी बॉटल्स कभी देखी हैं? बिल्कुल छोटी छोटी बॉटल्स में बहुत खुशबू वाला परफ्यूम होता है, इसको कहते हैं इत्र। और ये इतनी छोटी बॉटल्स में क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ द प्योर नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर। इत्र इज़ अ प्योर नेचुरल प्रोडक्ट, प्योर फूलों से एक्सट्रैक्ट करके वो बनता है, और उसकी खुशबू बहुत ही इंटेंस होती है। सो इट इज़ used in very small amounts. even when the bottle gets over, इत्र ख़त्म हो जाता है, खाली बॉटल भी आप अपने सूटकेस में या कबर्ड में रखोगे तो आपके सारे कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ओके, सो दैट इज़ वाई उसकी बड़ी बॉटल की ज़रूरत ही नहीं होती। इट इज़ वेरी स्मॉल and it is has a very strong smell also, a nice one, fragrant one. Even a small bottle of इत्र is made from lots and lots of flower. एक बॉटल इत्र बनाने के लिए बहुत 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 सारे फूलों की ज़रूरत होती है। The कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। इत्र के लिए कौन सी जगह फेमस है? उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज, वहाँ पर बहुत सारे वहाँ के आसपास के एरियाज़ में फूलों की खेती होती है, और वो ट्रक्स में भर भर के फ्लावर्स लाते हैं, एंड फ्रॉम दोज फ्लावर्स इत्र इज़ एक्सट्रैक्टेड। इत्र, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हेयर। तो वहाँ से ही रोज़ वाटर, केवड़ा भी होता है, एक लिक्विड होता है जो खाने में पड़ता है मीठी चीज़ों में, वो भी डाला जाता है। Thousands of people in Kannauj are engaged in this work. और वहाँ की मेन इंडस्ट्री, वहाँ की यही इत्र मेकिंग इंडस्ट्री कन्नौज की बहुत फेमस है। वहाँ का इत्र भी बहुत अच्छा होता है, और इत्र में कोई केमिकल नहीं होता। जो परफ्यूम्स हम यूज़ करते हैं वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, बट इत्र हैज़ नो केमिकल इन इट। ओके, सो इट इज़ बेटर देन परफ्यूम। Now, when we talk about flowers, you must have seen that there are several flowers used on certain special occasions. कुछ special occasions में कुछ particular flowers ही use किए जाते हैं, दूसरे नहीं use किए जाते हैं। तो these are some such occasions, and you should remember when we are learning so much about flowers. इतने दिन से हम flowers का पढ़ रहे हैं, तो we should know on which occasion what flower is used. Like Friendship Day, yellow flowers. एनी येलो फ्लावर, ओके। लक्ष्मी पूजा के लिए लोटस के का फूल चाहिए होता है। बिहू फेस्टिवल में एक कपऊ करके फ्लावर होता है, दैट इज़ यूज, जिसकी पिक्चर ये लगाई हुई है मैंने। दिस पर्पल फ्लावर इज द कपऊ फ्लावर ऑफ बिहू। फ्यूनरल, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें जनरली वाइट कलर के फ्लावर्स यूज़ होते हैं। लिलीज, रोजेस एंड क्रिसैंथेमम्स आर used in funerals. Weddings में भी lilies are used. ईस्टर जो क्रिश्चियन फेस्टिवल होता है उसमें वाइट रोजेस आर यूज। गेट वेल सून, जब हमें कोई बीमार होता है, वी आर गिविंग देम फ्लावर्स, तो वी मस्ट ट्राई टू गिव देम ब्राइट चीयरी फ्लावर्स। ब्राइट, जो ब्राइट शेड्स वाले अच्छे ब्राइट फ्लावर्स हों वो देने चाहिए, बिकॉज दे ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू द लाइफ ऑफ द वन हु इज़ सफरिंग। जो बीमार होता है उसको ब्राइट फ्लावर्स देखकर बहुत खुशी होती है, सो वी शुड ट्राई टू गिव देम ब्राइट फ्लावर्स। ऑन क्रिसमस, द फेमस फ्लावर ऑफ क्रिसमस इज क्रिसमस कैक्टस and poinsettia. You must not have seen these flowers,
पर क्रिसमस कैक्टस बहुत कॉमन होता है, देखा ज़रूर होगा. यू मस्ट नॉट बी नोइंग द name. So I have shared their picture also. See, this bright red flower is the poinsettia. ये है poinsettia and this is Christmas cactus. So बहुत अच्छा होता है Christmas cactus का flower. With that, our today's lesson is over. You view the video again and again and try to identify these things and learn them. Thank you, children.